Good morning to all. Good morning, teacher. Before this lesson, which lesson we had completed? You know that? Yes. Light. Okay, very good. Chal. So our today's chapter is there, chapter number 16, that is garbage in, garbage out. What is the meaning of garbage in, garbage out? That meaning of garbage, you know, that waste materials we have to throw out at our home, okay, like vegetable peels, without cutting, otherwise spoil food, okay, so that we have to throw out in the dustbin, waste materials, okay, and some of the papers, some of the plastic bags, some of the plastic bottles that we have to give to the kabadi walas, that all are waste material. But out of some waste material, some of biodegradable and some of non biodegradable. Biodegradable का meaning है कि the material which we can reused again, okay, they are called biodegradable. Like कि the AC is not working at our home, some of the part of fridge is not working at our home, so we cannot throw whole fridge, उठा के उसको garbage में नहीं फेंक देते हैं, okay, some of the part we have to repair it, otherwise recycled it, that is biodegradable, जिसका reuse हम कर सकते हैं, okay, तो पूरा ऐसे नहीं फेंक देती, तो parts बिगड़ गया है, that we have to repair it, okay, otherwise अगर वो ज़्यादा बिगड़ गया है, रिपेयर भी नहीं होता है, तो हम कबाड़ी वाला और फैक्ट्री में वो लोग ले जाते हैं और उसका रिसाइकल्ड करते हैं, उसको फिर से पिघाल के नया पार्ट्स बनाते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जिसका हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते. तो आज हम ये लेसन में ये पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, विच आर द रीयूज्ड, which are not irreversible, which are reversible. Okay, chal. So we throw out some of the rubbish or a garbage every day from our homes, schools, shops and office. After Diwali is there, so when we have to clean our homes, shop, schools, okay, तो अभी आपकी स्कूल 2 साल या 1 साल के बाद चालू हुई है, तो ये 1.5 साल में जो भी इतने सालों का पेपर, रद्दी, जो भी था, प्लास्टिक, ओके, बच्चों का कुछ पेजेस रह गए थे या एक्स्ट्रा जो मटेरियल है हम लास्ट 5 साल से यूज कर रहे थे, अभी वो वेस्ट हो गए थे, तो वी हैव टू गिव इट टू कबाड़ी वाला. ओके, हमने स्कूल को क्लीन कर दिया, बिकॉज कबर्ड्स खाली करेंगे तो ही हम नया मटेरियल उसमें टीचर्स या सर या प्रिंसिपल अपनी ऑफिस में जमा करेंगे, है ना. तो वी हैव टू, आपके घर में भी आपकी मम्मी है जो वेस्ट मटेरियल है वो कबाड़ी वाला को देती है दिवाली के ऊपर, पुराने कपड़े हैं तो नीडेड पीपल को देती है ना. दैट वे, बिकॉज every time we purchase new and new object, so where we have to keep, so the object which are not usable at our home, in schools or office or a school, that we have to throw out. Okay, chalo. So shops and office, the grain, pulses, biscuit, milk or oil purchased in shop. The grains means wheat, rice, bajri, okay, they are called grains. Pulses means you know moong, chana, these all are called pulses. Biscuit, milk or oil purchase means to be buy, खरीदना, that is called purchase का इंग्लिश है to be buy. In shop are packed in plastic bag, बराबर. These all the item which we buy ready made, these all are पैक्ड इन अ प्लास्टिक रेपर्स, बराबर. आपने बिस्किट खाया, चॉकलेट, तो ये प्लास्टिक क्या है आपको पता है? वैसे तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. प्लास्टिक को 10 साल, 20 साल, 25 साल भी मिट्टी में आप दबा के रखोगे, ओके, या मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, तो प्लास्टिक कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, वो सड़ेगा नहीं. डिकम्पोज्ड मीन्स ओके, वो सड़ेगा नहीं. बट आपने कपड़ा है, फट गया है और आप ने फेंक दिया है, तो बारिश आएगी, धूप आएगी मिट्टी के साथ, तो वो फट जाएगा धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने में वो कपड़ा है वो मिट्टी में मिल जाएगा. ओके, तो सम ऑफ द ऑब्जेक्ट आर मिक्स विद द सॉइल, डिकम्पोज आफ्टर सम टाइम. लाइक आपने गार्बेज में मम्मी ने वेजिटेबल कट किए और उसका पील है फेंक दिया, तो 2-4 दिन के बाद सड़ जाएगा, उसका फर्टिलाइजर्स बन जाएगा और फर्टिलाइजर्स कैन मिक्स विद द सॉइल, तो वो ह्यूमस फॉर्म में यूज होगा, फर्टिलाइजर्स फॉर्म में यूज होगा. But plastic cannot be mixed with the soil. Okay, glass,
आप 10 साल के बाद आपने ग्लास की बॉटल अंदर मिट्टी के अंदर दबा दिए नीचे 20 फीट या 10 फीट में, 10 साल के बाद आप सॉइल को डिग आउट करोगे, इट कैन नॉट बी decomposed with the soil. So some of the objects are mixed or decomposed. Okay? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद भी वो अपना अस्तित्व मिटा देती है. मीन्स वो प्लास्टिक अरे क्लोथ्स नहीं रहता, कॉटन नहीं रहता, वो वेजिटेबल पील नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है. सड़ने के बाद पाउडर बन जाता है और मिक्स विद द सॉइल. बट सम ऑफ द ये जो प्लास्टिक बैग और टिन्स, because tins are made from iron, all these wrapping material go out as a garbage. We sometimes buy these things that are rarely used and often thrown into the garbage. Sometimes we can use, otherwise we can throw, okay, in the garbage, otherwise give it to kabadi walas. जो आयरन के टीन्स है, जो आप कोका कोला और प्लास्टिक की बोतल में टीन पीते हो, टीन्स में आप कोका कोला पीते हो, ओके, तो वो हम फेंक देते हैं. We generate so much garbage in our day-to-day activities. We often throw a groundnut shell or a public place. Open throw a groundnut shell. जब भी हम मार्केट में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पे मूंगफली मिलती है, लहरी में मिलती है ना, गरम गरम, तो हम इसके छिलके हैं ग्राउंडनट, वो गाड़ी में से बाहर फेंक देते हैं खाते खाते. या कोई पिकनिक प्लेस पे बैठे गार्डन में, तो पेपर में रैप करके हम कहाँ पे डाल देते हैं, डस्टबिन में, है ना. या आप बिस्किट खाते हो या आपने मकई का जो भुट्टा है, कॉर्न है, आप कॉर्न खाते हो, तो वो खा के कहाँ पे फेंक देते हो, है ना, डस्टबिन में फेंकते हो. चलो, so groundnut shell or a public place. In a buses or a trains, after eating the nuts, we throw away the tickets when we get off a bus. जब भी बस बंद हो जाती है तो हम टिकट फाड़ के विंडो में से बाहर फेंक देते हैं कि अभी हम हमारे डेस्टिनेशन पे उतर गए, तो नो नीड टू. तो ये जो हम आइटम थ्रो कर देते हैं ट्रेन के ट्रैक के ऊपर, ट्रेन में से पानी खत्म हो गया तो पानी की बोतल ट्रेन में से फेंक दिया, बिस्किट का वेपर खाया वेपर का, तो ये जो गार्बेज पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होता है. ओके, चलो, तो अ चाइल्ड माइट बी गो ऑन अ शार्पनिंग द पेंसिल जस्ट फॉर अ फन. इफ यू मेक अ मिस्टेक of a spell, ink or out notebook, we tear off the seal and throw away. जब भी आप शार्पनर करते हो या आपने नोटबुक में कुछ गलत लिख दिया तो आप स्क्रैचेस करते हो, आपका पेज बहुत गंदा हो गया तो आप फाड़ के पेज को फेंक देते हो. तो दिस ऑल द आइटम्स आर वेस्ट मटेरियल which we have to throw because it's unusable on our notebook. We tear off this sheet and throw away. And we also throw away a many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. घर पे जब भी सफाई करते हैं, ओके, पहले तो रखते हैं कि सब एक साथ इकट्ठा होगा तब हम फेंकेंगे. ओके, दैट वे वी हैव टू स्टोर इन अवर स्टोर रूम और एक्स्ट्रा स्पेस, जहाँ पे हमारे घर पे एक्स्ट्रा कबोर्ड है, स्पेस है, वहाँ पे ये सब चीज हम जमा करते हैं. उसके बाद ओके, इट्स टोटली fill the cupboards with the waste material. We can give it to कबड्डी वाला, या कबड्डी वाला भी कोई आइटम ऐसा है कि नहीं लेता है, that we have to throw. So what is the garbage is not removed from our home and surrounding. अगर ये garbage हमारे सराउंडिंग में जो स्टोर हुआ है, if it is not taken, okay, by the garbage those who are coming in the morning of a municipality, ओके, जो ट्रैक्टर वाला आता है और हमारे घर से डस्टबिन में से वो गार्बेज ले जाता है, अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा. ओके, हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म फॉर अस. यस, आपका घर पे डस्टबिन 1 वीक तक नहीं आया है तो आप जैसे ही डस्टबिन ओपन करोगे आपके डस्टबिन में से डर्टी स्मेल आती है ना, और पॉइजनस गैसेस, अंदर गैस बनता है बिकॉज मम्मी ने प्याज छीली है, लहसुन छीला है, ओके, गार्लिक, ऑनियन, वेजिटेबल पेस्ट, बनाना पेस्ट. आप देखते हो कि बनाना तो हमारे डाइनिंग के ऊपर होता है तो छोटी छोटी इंसेक्ट या मस्सी उसके ऊपर बैठती है, आपने देखा होगा, है ना, उसके ऊपर माइन्यूट जम्स बैठते हैं एंड दैट डैमेज अवर बॉडी. अगर आपने जो बनाना स्किन के ऊपर जम्स बैठे हैं, आप बनाना लेने जाओगे ना, उसके ऊपर से बहुत सारे जम्स फ्लाई होते हैं. ओके, बनाना का छिलका भी आपने ओपन करके किचन में रखा है तो वी हैव टू सी यू सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर fly on the banana skin, so that damage to our body because हमने ऐसा केला खाया है, बनाना खाया है, तो ये जर्म्स ने अपना वेस्ट मटेरियल
क्योंकि वो बाहर गार्बेज एरिया में भी बैठ के आया है, डर्टी एरिया में, और वही जम्स हमारे पेज के ऊपर भी बैठा है, बनाना के ऊपर, तो वो डर्टी प्लेस पे बैठे आया है, तो दे कैन डैमेज, अदरवाइज दे कैन प्रोड्यूस अ डिफरेंट डिसीज. ओके, तो अगर गार्बेज वाला मीन्स द म्युनिसिपैलिटी ट्रैक्टर इज नॉट कम इन द मॉर्निंग एवरी डे and your garbage is store and store, so what happen over here? It's a very harmful for हमारे लिए वो नुकसान करता होगा. When a ऐसे FAT ये क्या है? सफारी थोड़ी है, सफाई कर्मचारी, that is called municipality. बेटा read the spelling. हाँ, सफारी is a different word. Okay, सफाई कर्मचारी. सफाई कर्मचारी मीन्स हमारे घर पे अगर टॉयलेट और वॉशरूम मम्मी आपको एक वीक में क्लीन करती है, या आपकी काम वाली जो भी है, या हमारे स्कूल में मासी क्लीन करती है ना, थिंक इफ इट्स नॉट क्लीन, so many germs are there and they can damage your body when you have to go in the washroom to wash your hand, face and for the washroom. Yes, okay, or dirty smell is produced also there, and that is why when you are going the washroom beta, okay, so always you have to pour the water, not comes out without pouring the water. It's our moral duty, है ना. तो ये एक डिसिप्लिन है, घर पे हो या स्कूल में हो, आपको फ्लश करना ही है, कंपल्सरी करना है ना. चलो, वेरी गुड. So throw the garbage from the bins. Where does the garbage go and what happens to it? ये जो गार्बेज सफाई कर्मचारी आता है मॉर्निंग में ट्रैक्टर लेके, और हमारा जो पूरा डस्टबिन है उसका कचरा वो ले जाता है, तो where they have to throw this garbage? They have to separate the garbage. जैसे प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक का डब्बा आपने फेंक दिया है, कोई प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक आइटम को जहाँ पे वो गार्बेज है वहाँ पे एक टीम होती है, वो उसको सेपरेट करती है. जो वेट गार्बेज है, जैसे आपने वेजिटेबल पील फेंका है या मम्मी ने जो बचा हुआ खाना फेंका है, तो वो गार्बेज अलग करेगी, और जो ड्राई गार्बेज है उसको भी अलग करेंगे. आपको पता है कि डस्टबिन आता है, रेड डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन. जो सर्जिकल है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, तो हॉस्पिटल में जो बैंडेज है, जो इंजेक्शन है, जो प्लास्टिक बॉटल है, जो आपको बॉटल चढ़ाते हैं, तो वो प्लास्टिक बॉटल मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होती, वो सॉइल पॉल्यूशन करती है, सॉइल को डैमेज करती है. इसीलिए ऐसे गार्बेज को वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के लिए फैक्ट्री में बेच देते हैं. ओके, और वहां पे उसको पिघाल के नया प्लास्टिक बॉटल्स बनाते हैं. तो गार्बेज को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी दे हैव टू कैटेगराइज इन द डिफरेंट कलर डस्टबिन. चलो, so what happens if they are not going to come to collect the garbage? It's possible for all of this garbage to be changed into a something that will not harm for years. Some of the garbage are changed. Sit straight beta. Okay, आपका attention यहाँ पे ही रखो. Can we contribute towards this in any way? We will look for the answer to this question in this chapter. यहाँ पे ऐसा पूछा है कि जो सब गार्बेज है, this all the garbage are unusable. Can some of the garbage we can recycle it? Yes. Okay, यहाँ पे आपको ये आंसर, ये पूरे चैप्टर में आपको यही समझना है. ऊपर है आपके, नीचे है, ऊपर ये ना. Yes. Children from, Yes. चलो, children from Pahelian Bujo School did a project called DEALING. Okay, dealing with garbage. Dealing with garbage means, what is the meaning of dealing? हाँ, डील करना, बट किसी के साथ मिलके काम करना है ना, दैट इज कॉल्ड डील. वी विल, और डील में हम क्या करते हैं, हमारे आइडियाज भी रखते हैं. हाँ, वी हैव टू शेयर अवर आइडियाज इन दिस डील. सामने वाले के साथ आप डील करते हो, ओके, आप दो पार्टनर हो और आपने इसके साथ डील, तो दे हैव टू रिप्लाई कि वी कैन नॉट डू लाइक दिस, इफ वी कैन डू लाइक दिस वे. तो ओके, डील में भी डिबेट्स होती है. ओके, और फिर डील पक्की होती है कि दोनों का थॉट मैच होना चाहिए. ओके, चलो, दैट इज, सो वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ देम थिंग्स दैट लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट. यहाँ पे हमको एक प्रोजेक्ट करना है. चलो, डीलिंग विथ गार्बेज. चलो, सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन द ट्रक्स एंड टेक इनटू द
लो लेइंग ओपन एरिया। लो लेइंग ओपन एरिया मीन्स जहाँ पे स्लोपिंग एरिया है, एंड these are the totally far away from the residential area. Always garbage area is there, not near a society or not near a company. Okay, it is a far away from the residential area because रोज ट्रैक्टर भर के दिन में 50 to 100 ट्रैक्टर्स, 50 ट्रैक्टर्स जितना कचरा अलग अलग एरिया में से वो लोग ले आते हैं। और लो लेइंग एरिया जहाँ पे स्लोपिंग एरिया है वहाँ पे वो लोग कचरे को रोज वहाँ पे फिल करते हैं, डाल देते हैं, बराबर। फिर वो जमा हो जाता है, उसमें एक टीम रखी है गार्बेज को सेपरेट करने की। ओके, इज कॉल्ड लो लेइंग ओपन एरिया इज कॉल्ड लैंडफिल्स। व्हाट इट इज कॉल्ड? लैंडफिल्स का नॉर्मल मीनिंग इज देयर कि जो पब्लिक है उससे थोड़ा लो लैंड एरिया है, थोड़ा स्लोपी एरिया है क्योंकि वो खड्डा है और खड्डे के अंदर पानी भर जाए इसकी जगह पे वो लोग गार्बेज फिल करेंगे तो वो एरिया में पानी भी नहीं जमा होगा। ओके, वाटर कैन नॉट बी ब्लॉक इन देयर एरिया। क्लियर इट? तो वो लैंडफिल कैन व्हाट हैपन बिकॉज वो एक के ऊपर एक कचरा डालते जाएंगे तो देयर विल बी अ लाइक माउंटेन। ओके, वो माउंटेन जैसा बन जाएगा, इसीलिए वो स्लोपिंग एरिया चूज करते हैं कि वो स्लोपिंग एरिया की वजह से अगर जो पीठ है वो ऊपर भी आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज रोज एक के ऊपर एक कचरा डालते हैं तो वो माउंटेन जैसा बन जाएगा, है ना। दैट इज व्हाई दे चूज दिस अ लो लेइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। यहाँ पे अंडरलाइन करो। Then the part of the garbage that can be reused is separated out from one of that cannot be used, such as जो आइटम यूजेबल नहीं है, जो उसको बर्न करने के बाद भी बर्न नहीं होने वाली, ऐसे आइटम को वो लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। चलो, the garbage has been both useful and not useful component. Component means item which we are throw in the garbage. Okay, in the garbage we have to throw a waste material like banana peels, mango peels, okay, or any vegetable peels, clothes, okay, leftover food, some of the plastic item, this all we can throw. तो इसमें से कौन सी आइटम यूजेबल है और कौन सी आइटम रिसाइकल्ड होने वाली है और कौन सी आइटम में से मैन्योर बनने वाला है, दैट वे दे हैव टू कैटेगराइज इट। लेसन को समझना है ना बेटा, ये बायोडिग्रेडेबल बहुत यूजेबल चैप्टर है। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट, कंपोनेंट मींस गार्बेज में जो जो आइटम है, दिस ऑल आर कॉल्ड कंपोनेंट। गार्बेज में आपने जो भी चीज फेंकी, आज आपकी मम्मी ने गार्बेज में जो भी आइटम फेंकी, दिस ऑल आर कंपोनेंट। वेजिटेबल, पोटैटो पील, टोमेटो पील्स, ओके, बनाना पील्स, ऑनियन पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, कहीं प्लास्टिक की पेंसिल या बॉटल दिखी तो वो भी डस्टबिन में फेंक दी, कहीं मार्केट में से वेजिटेबल लाई तो वो भी फेंक, वो उसका जो प्लास्टिक फेंके, तो दिस ऑल आर कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट मींस वेस्ट मटेरियल, इट डन देयर बी अ स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ अ सॉइल। ये जो out of this all item, out of this all component, जितने भी यूजिंग कंपोनेंट है लाइक वेजिटेबल पील, ओके, तो यूजिंग कंपोनेंट को क्या किया? लैंडफिल में फिल कर दिया और उसके बाद वो लैंडफिल, वो खड्डा मिट्टी से बंद कर दिया। तो दिस वेजिटेबल पील इज अ यूजेबल मटेरियल, उसके ऊपर पानी गिरेगा या पानी मॉनसून सीजन नहीं है तो वो खड्डा बंद करने के बाद उसको ऊपर से पानी पॉर करते हैं, डालते हैं, ओके। उसके बाद अंदर अर्थवर्म्स और इंसेक्ट पड़ जाते हैं, वो वेजिटेबल पील सड़ जाती है अंदर गर्मी और पानी की वजह से, और उसका क्या बनता है? मैन्योर बनता है। तो ये हुआ, ये जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल क्या है? रिसाइकल्ड है, जिसका हमने कोई दूसरा ऑर्गेनिक बना के उसका फिर से हमने यूज किया, दूसरा मटेरियल। तो ये फर्टिलाइजर्स फार्मर क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं। तो वेजिटेबल पील्स आर अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ओके। बट प्लास्टिक की बोतल को अगर उन्होंने खड्डे में बंद कर दिया या मम्मी ने ग्लास की बोतल फेंक दी है, काम नहीं है, ओके, कप एंड सॉसर ब्रोक डाउन हो गया और मम्मी ने कप एंड सॉसर डस्टबिन में फेंक दिया है और डस्टबिन में वो गार्बेज में गया है, तो गार्बेज वाला उसको सेपरेट करेगा। वो लैंडफिल जो मैन्योर बनाने के लिए जो पीट उन्होंने भरा है वेजिटेबल, उसमें वो कप और सॉसर नहीं डालेंगे
क्योंकि वो मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होगा, वो सड़ेगा नहीं। ओके, तो वो अनयूजेबल है, उसको वो ग्लास को वो फैक्ट्री में भेज देंगे रिसाइकल्ड करने के लिए। ओके, तो फैक्ट्री में उसका पाउडर बना देंगे, बिकॉज कप एंड सॉसर इज मेड फ्रॉम ओके स्टोन एंड पाउडर। तो वो पाउडर का फिर से वो लोग उसका सेट बना के फिर से उसको रिसाइकल करेंगे। तो और जो रिसाइकल्ड नहीं है उसको डिकम्पोज्ड करेंगे। डिकम्पोज मीन्स उसको बंद कर देंगे, जला देंगे, है ना, दैट इज। तो डिकम्पोज की मेथड अलग अलग है, शायद आपने 4 और 5th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। लैंडफिल, डिकम्पोज, है ना, 4 या 5 मेथड हमने पढ़ी है कि हम गार्बेज कैसे कैसे डिकम्पोज। तो once of the landfills is completely filled, it's usually converted into a park or a playground for the next 20 years or so. No building is constructed on it to be a deal with some of the useful component of the garbage. जो डील हुई थी कि जो जगह पे लैंडफिल बनाया है वो जगह पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। अगर स्कूल बन गई, फैक्ट्रीज बन गई, इंडस्ट्रीज बन गई, ओके, शॉप्स, शॉपिंग मॉल बन गए, तो अब लैंडफिल वाला एरिया जो है, जो हमने चूज किया था डील में, वो लैंडफिल हम कहाँ पे बनाएंगे, फर्टिलाइजर्स के लिए लैंडफिल हम एरिया कहाँ पे चूज करेंगे। तो ये डील में वो लोग कुछ भी यहाँ पे 20 साल तक कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ऐसा डील हुआ था। पहले भुजो ने जो डील किया था कि ये जगह पे 20 इयर्स तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। दिस एरिया इज ओनली यूज फॉर द लैंडफिल, है ना, टू कलेक्ट अ यूजफुल गार्बेज, बराबर। तो यहाँ पे ये डील कंप्लीट होती है। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ अ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरिया। कंपोस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोस्ट? जो थिंग से फर्टिलाइजर्स बना है, दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट। एंड कंपोस्ट ऑब्जेक्ट, तो वेस्ट मटेरियल जो है जिससे लाइक कि फार्मर्स कैन ग्रो अ क्रॉप्स ऑफ अ शुगर कैन, ऑफ अ व्हीट, राइस, बाजरी, जो भी फार्मर्स के खेत में क्रॉप्स ग्रो होता है, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, ग्रेन जो है, व्हीट कट कर ली, राइस कट कर लिए, तो उसकी जो स्टेम बची है, बिकॉज ग्रेन से कलेक्ट किए हैं, तो स्टेम बची है वो ड्राई हो जाती है, खेत के अंदर सूख जाती है, और उसका क्या बनाते हैं, पाउडर। तो फार्मर ने वो स्टेम कट करके जला के फेंक नहीं दिया है, उसका रिसाइकल्ड किया, और वो जो शुगर केन, व्हीट, राइस, उसका जो ड्राई स्टेम है, उसका जो पाउडर बना, वो एनिमल्स को खिलाते हैं, और एनिमल्स को वो खाने के बाद एनिमल्स में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, दैट मिल्क वी कैन यूज, ओके, वी कैन लर्न कि एनिमल्स गिव अस मिल्क। तो वो मिल्क कहाँ से मिलता है? तो ये एनिमल्स जो है, ग्राउंडनट का पील्स होता है, मूंगफली का छिलका, शुगर केन, ओके, व्हीट, राइस, बाजरी, चना, मूंग, ये सब खेत में क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो उसके ग्रेन्स निकालने के बाद उसकी जो स्टेम बनती है उसको फार्मर सुखाते हैं। सुखाने के बाद वो थ्रेसिंग मशीन में क्या बनाते हैं? पाउडर बनाते हैं। ओके, इफ यू आर नोइंग द रूरल एरिया स्टूडेंट, ओके, उसको गुजराती में खाण बोलते हैं। તમે જાઓ તો રૂરલ એરિયામાં તગારામાં એ લોકોને યલો કલરનો પાવડર મૂકે છે, है ना, दैट इज कॉल्ड दिस वेस्ट मटेरियल। ओके, तो ये भी एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हुआ, रिसाइकल्ड हुआ, यस, ओके। तो ये वेस्ट नहीं हुआ, देखो ये वेस्ट नहीं हुआ। थर्ड एग्जांपल आई एम गिविंग अ बायोडिग्रेडेबल, व्हेन इन अ फॉरेस्ट एरिया द लीव्स आर फॉल डाउन इन ऑटम सीजन, जब भी पत्ते सूख के नीचे गिर जाते हैं, तो जंगल में कोई उसको जलाने नहीं जाता। व्हाट हैपन, वो पत्ते जो नीचे गिर जाते हैं वो सूखने के बाद ब्राउन हो जाते हैं। ब्राउन होने के बाद रेनी सीजन में वो तो वहां ही पड़े रहते हैं, बिकॉज जंगल इज अ वेरी वाइड एरिया। तो द रेन इज फॉल्स ऑन देयर इन अ रेनी सीजन, ओके। द हीट एरिया, वो एरिया जो है वो गर्मी की वजह से हॉट भी होता है, गर्मी भी उसके ऊपर पड़ती है। तो बारिश, गर्मी, ठंडी की वजह से वो लीफ कोहवा जाते हैं, सड़ जाते हैं, और ब्लैक कलर का पाउडर बनता है। तो इतने बड़े जंगल में तो कोई फर्टिलाइजर्स डालने नहीं जाता। नो वन कैन गो इन द फॉरेस्ट टू फर्टाइल द सॉइल, सॉइल में फर्टिलाइजर्स। तो इतने बड़े ट्रीज ग्रो होते हैं, इतना बड़ा, उनको फर्टिलाइजर्स कहाँ से मिलता है? वही जो ट्रीज कोहवा गए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े थे उसको गंदगी की वजह से, ट्रीज कोहवा गए, लीव्स कोहवा गए, तो उसके अंदर सड़ गए, और सड़ने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर गए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ये मिट्टी को क्या किया? फर्टाइल किया, और
वहाँ जंगल में फिर से जो फ्रूट में से सीड फॉल्स हुआ था, न्यू प्लांट्स ग्रो हुआ। तो जंगल में फर्टिलाइजर्स अपने आप नेचुरली बनता है, आपको पता है, नेचुरली बनता है। वहाँ पे कौन पानी पोर करने जाता है? इतने बड़े जंगल में कोई जाता है? वो तो बार बार अपने खेत में पानी पोर करता है या इरिगेट करता है। ओके, इतने बड़े जंगल एरिया में सापुतारा का जंगल है, डांग का जंगल है, आहवा का जंगल है, लॉट्स ऑफ वाइड एरिया जंगल इज देयर। वासदा देखो, सेल्वास देखो, ये तो मैं सिर्फ गुजरात की बात कर रही हूँ, बाकी के बाहर तो बड़े बड़े जंगल है। ओके, तो वहां पे कौन पानी और फर्टिलाइजर्स, तो वहां पे जो पत्ते गिरते हैं, सूख जाते हैं, पाउडर बनता है, वही उसका रिसाइकल्ड फर्टिलाइजर्स है। गॉट इट व्हाट आई वांट टू से टू यू? ओके, चलो। So to deal with some of the useful component of the garbage, compost making area are developed near the landfill. तो compost area है जो ऑब्जेक्ट सड़ जाते हैं, ओके, और उसका यूजेबल मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बनता है, यूजेबल थिंग्स ऑब्जेक्ट ऑब्टेन होता है, तो वो लैंडफिल एरिया कंपोस्ट के नजदीक ही वो लोग डिग आउट करते हैं। ओके, चलो, व्हाट इज कंपोस्ट? लेट्स टू लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग activity. बेटा पॉज करो तो बटन। So on basis of this activity, what is compost? Okay, and that we learn here in the next lecture. We learn what is compost. So Paheli did wonder as to what could be useful garbage. तो ये जो हमने ऊपर कंपोस्ट पढ़ा, तो पहेली को आइडिया है कि यूजफुल गार्बेज कौन कौन सा है, बिकॉज पहेली एंड बोजो वर डिबेट टू ईच अदर, दे आर डिबेट टू ईच अदर एंड दे गेट द आइडिया व्हाट इज गार्बेज, व्हाई वाज इट थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस, if there is some garbage that is not actually a garbage, okay, like plastic bags and bottles या plastic waste material that we cannot throw. Some of the plastic utensil are broke out at our home. हमारे घर पे कुछ भी प्लास्टिक की वाटर बैग या नाश्ता बॉक्स या कुछ भी जार, डस्टबिन, बकेट्स टूट जाता है प्लास्टिक का, तो वो हम गार्बेज में नहीं फेंकते हैं। पे योर अटेंशन, दैट वी हैव टू गिव टू द कबाड़ी वालास। ओके, सो पहली get this idea कि all are not a unusable garbage, some of the usable and we can recycle it. So to understand this, yesterday, tomorrow we can learn the activity 1, okay, and up to here we can complete our today's lecture.